پاکستانیوں ایک اور واردات ڈلنے والی ہے۔ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ صحافی عمران ریاض خان نے خوفناک انکشاف کر دیا۔ صحافی عمران ریاض خان نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ حکومت ایک اور واردات ڈالنے والی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، حکومت ایک عجیب سی صورتحال بنائے گی اور معاملے کو دھندلا دیں گے۔ حکمران قوم کے مجرم ہیں اور خود کو کلین چٹ دلوانے کے چکروں میں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاور جنریشن پالیسی بار بار بنتی ہے۔ 1994 میں IPPs کے حوالے سے ایک پالیسی بنی تھی۔ 2002 میں ایک اور پالیسی بنی جس کے تحت مشرف اور پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی کے منصوبے لگے۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اس وقت دوبارہ پالیسی بنی۔ اب یہ کھیل کیا کھیلنے لگے ہیں؟ اب توجہ ہٹانے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے کہ ہم بہت اچھا کام کریں۔ سازشیوں، تمہارا کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ ارشد شریف قتل، عمران پر حملہ کس نے کیا؟ حفیظ اللہ نیازی نے کردار بے نقاب کر دیا۔ حفیظ اللہ نیازی نے اپنے کالم کھیل ختم ٹاپ بہانہ باٹم نشانے میں لکھا کہ جیل سے اعلامیہ سامنے آئے کہ میرا جنرل فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جھوٹ بولے کوا کاٹے۔ عمران خان، آپ نے لیا بھی اور دیا بھی۔ 2011 سے اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ جناب کی تحویل میں ماشاءاللہ آپ کی پرفارمنس ایوارڈ وننگ رہی۔ حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ بلا شبہ قبل از ریٹائرمنٹ حاضر سروس جنرل فیض کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ ایک پنڈورا باکس کھل چکا۔ مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا وسیع اور عریض تباہ آزمائی کر رہا ہے۔ گوشربا کہانیاں تشت ازبام ہو رہی۔ جنرل فیض کی سازش کو عملی جامہ پہنانے میں عمران خان کا کردار لاجواب اور بے مثال تھا۔ جنرل فیض کا کردار 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ جنرل فیض کا پہلا دور قابل گرفت نہیں کہ 1951 سے آج تک سیاسی مداخلت ادارے کا وتیرہ رہا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان اللہ کی اسکیم کو ناکام بنانے کے لیے تن من دھن نہ لگاتے تو کم از کم جنرل عاصم منیر کے پاس سیاست میں مداخلت کرنے یا نہ کرنے کی چوائس ہوتی۔ اس بات پر جنرل فیض اور اینکر پرسن ارشد شریف کی لڑائی ہوئی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار راؤ کلاسرا کا تہلکہ خیز انکشاف سامنے آ گیا۔ سینئر صحافی راؤ کلاسرا نے جنرل فیض حمید سے متعلق انکشافات کے ڈھیر لگا دیا۔ کہا کہ جنرل فیض نواز شریف کے ساتھ اسی طرح وفادار تھے جتنے بعد میں عمران خان کے ساتھ ہوئے۔ جنرل فیض نے ہی نواز شریف کے خلاف خبریں لگانے کے لیے اینکرز اور ٹی وی چینلز کو دھمکیاں دی۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں پاناما اسکینڈل آیا، جلسے جلوس بھی جاری تھے، GITs بھی بن رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف پر دباؤ ایکسٹینشن کے لیے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات پیدا کیے گئے تاکہ نواز شریف ایکسٹینشن کے لیے مجبور ہو جائیں۔ راؤ کلاسرا نے کہا کہ راحیل شریف نے ایک غلطی کی کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہ لینے کا ٹویٹ کرایا۔ ریس میں دوبارہ واپس آنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی۔ اس کے بعد چوتھے 5ویں نمبر پر موجود جنرل باجوہ آئے جس کی گارنٹی بہت سے لوگوں نے دی۔ باجوہ نے ڈان لیکس پاناما کو سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ جنرل فیض حمید نے جب DGC کا عہدہ سنبھالا اس وقت ارشد شریف پاناما کی سٹوریز بریک کر رہے تھے۔ 2 ٹکے کا پیسوں پر بکنے والا جعلی PTI کے سابق رہنما مسرت چیمہ کا صحافی جاوید چودھری کے الزام پر سخت جواب آ گیا۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے صحافی جاوید چودھری نے ایک خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے وقت بانی PTI نے مسرت جمشید چیمہ کو اہم ہدایت دیتے ہوئے کوڈ ورڈ میں بات کی۔ انہوں نے مسرت کو ہدایت کی کہ اعظم سواتی سے رابطہ کریں۔ اعظم سواتی جنرل فیض حمید، جسٹس عمر عطا بندیال کا کوڈ تھا۔ جاوید چودھری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مسرت جمشید چیمہ جب پکڑی گئی تو اس نے بتایا کہ اعظم سواتی کوڈ ورڈ جنرل فیض حمید کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کیپٹل TV سے گفتگو کرتے ہوئے مسرت جمشید چیمہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے جاوید چودھری کو جھوٹا، جعلی، 2 ٹکے کا اور پیسوں پر بکنے والا صحافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ جنرل فیض حمید سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جو 2 ٹکے پہ بکنے والا جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ چودھری بھی لگاتا ہے، میری مراد ہے جاوید چودھری، اس کے بارے میں یہ میں آن اوتھ میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں کہ خان صاحب نے مجھے کبھی بھی، اس دن تو بالکل نہیں، اور اس سے پہلے میں جب انفارمیشن منسٹر تھی، میں خان صاحب کی میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم میں شامل تھی، یا میں جس وقت ان کی نوٹیفائڈ اسپوکس پرسن تھی، انہوں نے آج تک اس کا میں حلف اٹھاتی ہوں قرآن پاک کے اوپر کہ مجھے انہوں نے کبھی جنرل فیض صاحب سے رابطہ کرنے کا نہ کہا اور نہ میرے سامنے کبھی ان کا ذکر ہوا، نہ ذکر سے مراد رابطہ ہوا۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم نے اربوں روپے کا نقصان اٹھایا، ہم کل کو فخر سے سر اٹھا کر جئیں گے۔ جھوٹی باتیں پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ بھارت کو حساس تفسیرات کس نے ہوئی؟ ہوشربا انکشافات، ثبوت آ گئے۔ میڈیا رپورٹ سے مطابق تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آ گئے، جس سے مبینہ طور پر بانی PTI عمران خان کے ریاست مخالف بیانی کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی۔ PTI کے سیکرٹری جنرل رؤف حسن کا امریکی رائن ڈرم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے تمام تر
गोशतबा राब्तों का इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन की जानिब से 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया गया। शुरू के व्हाट्सएप पैगामात में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्किल इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। करण थापड़ ने 24 नवंबर 2022 को रऊफ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और एनर्जी के साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन के साथ सिक्योरिटी डॉग के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय करण थापड़ ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ शेयर की। बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगामात के जरिए यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया। बांग्लादेश के बाद भारत की बारी। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर, शदीद मुजाहरे, हालात कशीदा। कोलकाता रेप केस के बाद मोदी का भारत शदीद मुजाहरों की लपेट में आ गया। रेप के बाद डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों और इश्तियाल का सिलसिला बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों ख़वातीन ने एहतजाजन मार्च करके मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। इस वहशियाना जुर्म के खिलाफ कोलकाता शहर में रिक्लेम द नाइट मार्च के दौरान मुतादिद नामालूम अफराद ने हस्पताल पर हमला किया। भारत के कई दूसरे शहरों दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत की सियासी मदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इतने बड़े वाक़े के बाद भी भारत में ख़वातीन की इसमत दरी का सिलसिला ख़त्म ना हो सका। शुमारी रियासत उत्तराखंड में एक नर्स को काम से घर लौटते हुए मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। शुमारी रियासत बिहार में एक 9 उम्र दल्लत लड़की की मुबैना इज्तिमाई इसमत दरी के बाद मस्शुदा लाश तालाब के करीब से मिली। इतने बड़े वाक़े के बाद भी भारत में ख़वातीन की इसमत दरी के वाक़यात का सिलसिला थम न सका। शुमारी रियासत उत्तराखंड में एक नर्स को काम से घर लौटते हुए मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि शुमारी रियासत बिहार में भी एक 9 उम्र दल्लत लड़की की मुबैना इज्तिमाई इसमत दरी के बाद मस्शुदा लाश तालाब के करीब से। जनरल फैज हमीद के बाद हाजिर सर्विस जजों की गिरफ्तारी। हामिद मीर के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि जनरल फैज हमीद जब ISI के DGC और फिर DG ISI थे तो उन्होंने सिर्फ एक जमात में अपनी जड़ें मजबूत नहीं की बल्कि 3-4 जमातों में अपनी जड़ें मजबूत की। उनके वो ताल्लुकात उनकी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम आए और मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जब उनके खिलाफ 1-2 केसेस शुरू हुए तो उन्होंने बंद करवा दिए, क्योंकि उनके मौजूदा हुकूमत में भी ताल्लुकात थे। लेकिन इनके खिलाफ जो अब तहकीकात शुरू हुई हैं इसमें फिलहाल तो कुछ फौजी अफसरान का नाम आ रहा है, ताहम मुझे लगता है कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात भी तहकीकात की जद में आएंगी और मामला अदलिया की कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस शख्सियात की तरफ भी जाएगा। इसकी वजह है कि जब जनरल फैज हमीद के पास ताकत और इख्तियार था तो उन्होंने हाई कोर्ट्स में जजेस को तैनात करवाने और उनको प्रमोट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और रिटायरमेंट के बाद उनका अदलिया की कुछ शख्सियात के साथ राब्ता था। हो सकता है कि रिटायर्ड शख्सियात से भी पूछा जाए कि जब फैज हमीद साहब के मैसेजेस आपके पास आते थे तो क्या बात होती थी। छुट्टी के रोज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डीलिस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको एक अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डीलिस्ट कर दिया है। केस डीलिस्ट करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मद्दुखेल की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल 19 अगस्त को समाअत करना थी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं। हामिद खान छुट्टी की दरख्वास्त भी दे चुके हैं। उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डिलिस्ट कर दिया है। इमरान खान का शक दूर हो गया। एंकर के सवाल पर शेर अफजल मरवत प्रोग्राम छोड़कर चले गए। क्या इमरान खान का आपकी वफादारी पर शक दूर हो गया? सवाल पर शेर अफजल प्रोग्राम छोड़कर चले गए। MNA शेर अफजल मरवत सख्त सवाल पर निजी TV चैनल का प्रोग्राम छोड़कर चले गए। एंकर ने सवाल किया कि क्या बानिए PTI का आपकी वफादारी पर शक दूर हो गया? इस सवाल पर शेर अफजल बुरा मान गए और प्रोग्राम छोड़कर चले गए। शेर अफजल मरवत ने कहा, बानिए PTI इमरान खान को सब कुछ बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ। ये बात दुरुस्त है कि मुझसे भी गलतियां हुई थी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानिए PTI ने लीडर से मुतालिक बयानबाजी से मना किया है। हम जलसा हर सूरत करेंगे। हमने जलसे किए, मुझ पर मुकदमात बने, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। क्या इमरान खान का आपकी वफादारी पर शक दूर हो गया?
शेर अफजल मरवत प्रोग्राम छोड़कर चले गए। एमएनए शेर अफजल मरवत सख्त सवाल पर निजी टीवी चैनल का प्रोग्राम छोड़कर चले गए। अभी हालिया दिनों में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया। ये फौज के इदारे की शफाफियत की एक मिसाल है। तहकीकात के नतीजे में मजीद लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं। साकिब निसार को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बड़ा दावा कर दिया। विफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात की हैं। फौज के अंदर एहतसाब का अपना मैकेनिज्म है। फौज का इदारा दुनिया में इसलिए बेहतरीन जाना जाता है कि वो खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। अता तारड़ ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि तहरीक के इंतशार के चेयरमैन ने मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत की। इमरान खान ने उन लोगों के साथ गठजोड़ करके मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उस साजिश का सरगना इमरान खान था और उनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके बाकी साथी कर रहे थे। अता तारड़ ने मजीद कहा कि इस साजिश की तफ्तीश का दायरा कार बढ़ेगा। इस साजिश में और इदारों के लोग भी शामिल हैं। साकिब निसार हो या कोई और, ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की साजिश करे। अता तारड़ का ये भी कहना था कि ये भी काबिल जिक्र बात है कि ये भी गठजोड़ था कि तालिबान को लाकर बसाया गया। आज मुल्क में बदअमनी के जिम्मेदार यही लोग हैं। मुल्क का अमन, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। बानी चेयरमैन का राब्ता तहरीक अदम एतमाद के दौरान बहाल था। अब भी जेल में पैगाम रसानी जारी थी। हसीना वाजिद के खिलाफ तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा। बांग्लादेश वापस आए तो गिरफ्तार हो जाएंगी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद पर तालिब इल्म के कत्ल के एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हसीना वाजिद पर अब तक कत्ल के बांग्लादेश में 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश वापस गईं तो उन्हें इन मुकदमात में गिरफ्तार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हसीना वाजिद पर कत्ल का 3रा मुकदमा चट्टागांव के तहरीक के दौरान कॉलेज के तालिब इल्म के कत्ल का दर्ज किया गया है। मुकदमे में शेख हसीना और वजीर तालीम मुहिबुल हसन चौधरी समेत 34 अफराद को नामजद किया गया है। इसके अलावा इस केस में 40 से 50 नामालूम अफराद को भी मुलव्वस किया गया है। बांग्लादेश के ये अहम खबर कि जहां पर साबिक वजीर आज़म हसीना वाजिद पर तालिब इल्म के कत्ल की एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि हसीना वाजिद पर अब तक कत्ल के 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। यूरोप में जंग के खदशात। रूस ने यूक्रेन को खबरदार कर दिया। यूरोप में एक नई जंग के खदशात। यूक्रेन रूस को वार्निंग। यूक्रेन की रूस के क्रस्ट जौहरी प्लांट पर हमले की इतलात सामने आई हैं। यूक्रेन ने जौहरी प्लांट पर हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जमान रूसी वजारत दिफा मारियाज खारवा ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से तबाही की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की इतला को संजीदगी से ले रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला एटमी दहशतगर्दी होगी। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि आलमी जौहरी एजेंसी यूक्रेन के इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले।